Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are hale and healthy. This is Devangi ma'am here, back with part 2 of It So Happened book, lesson number 4, that is The Treasure Within. Now, before we move forward with the explanation of part 2, let us have the quick review of what we learnt in part 1. Now, as the title of the lesson conveys, the treasure within, that means each and every person possess some or the other skill or quality in themselves, in their within. They just need to find out that what is their key quality or what is their key passion that they want to pursue in life and become successful. So this lesson basically tells us that each and every individual has the potential, has the ability to become something or the other in his or her life. We just need to find out that what is that key quality of us that we have in ourselves, that gift, or you can say that natural quality that you possess, so that you can make your life successful. So in order to make us understand that, this lesson is showing the interview that happened between Miss Bela Raja and Mr. Hafiz Contractor. Here Miss Bela Raja is the editor of newsletter Sparsh, whereas Mr. Hafiz Contractor here is the well-known architect of India. So here Miss Bela Raja is interviewing Mr. Hafiz Contractor in order to know that how was his journey from his childhood days to becoming such a successful architect of India. So when she asked him various questions about his life, we got to know that as a schoolboy he was really unhappy. In third standard he lost his interest in studies completely. All day he just wanted to play and do funny pranks and jokes on others. He did not like to study at all. But later on, when he came in 10th standard, his principal called him and his few words changed his life and mind. His principal made him understood that all this time his mother has worked really hard. His father was no more, but still all these years his mother has worked hard and paid all his fees. So now it was his responsibility to that he become understanding and do his part of duties and work that he needs to do as he was growing up. So he understood those facts. It changed his life. Till now he had been passed in the examinations by copying in the school, but now he understood that in the board examinations he cannot copy. So whatever he had to do, he had to do on his own. Being a very good sportsman, he used to like cricket. He used to play cricket a lot and he was a really good captain also. But in the year of his board examination, he did not come on the field at all. He did not play. All he did was focus on his studies, and with his own effort he got 50% scores in the SSC board examination, and everybody was happy about it because whatever marks he got, it was because of his own efforts. So after he completed his board examinations, it was a normal life for him. What happened later on we'll come to know in this part. Also we got to know that he used to remember things in the form of a photograph. He cannot understand things in a verbal way as the things were taught. If at all he need to remind anything or he needs to remember anything, then he has to remember them in the form of the photographs. That was the way his mind used to work. And his books used to be brand new because he did not used to open at all during the school time or academics also. So junior class students used to book his they used to get his books booked in order to use them for their another year, because they were so brand new and not at all used. He only used to open it before his examinations. That is why they were in a really good condition. So this is how the things were happening in his life. He was totally an offbeat boy. He did not like to study, but still today he became one of the most well-known architects of India. So how did he do that, and how did he land on this particular profession and became this well-known famous architect of India? That we'll be seeing in this second part. So let's begin with the explanation of part 2. Now here let's first read the outlines. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. So basically this outline tells us कि वो
आर्किटेक्चर की फील्ड में इसलिए जा पहुंचा, स्टम्बल मीन्स गलती से, लाइक वहाँ पे गिर पड़ा या पहुंच गया, बिकॉज उसको थोड़ी सी फ्रेंच आती थी और उससे भी कम जर्मन. He was offbeat even in the pranks that he played on others. Means he was unusual, like different from others. Such kind of pranks he used to play on others. When he found his calling, there was no looking back. That means when he found his key quality that he possessed, using which he could be successful in his life, then there was no looking back. He moved forward with that quality of his and become this successful architect of India. Now, how did he do that? Let us see. So now, Miss Velaraja asked him, how did you get into the field of architecture? Like being such a naughty boy, unhappy, and not at all good in academics, how did you become an architecture? So now he replies, in the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. किसी भी आर्किटेक्चर की कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउड होता ही नहीं है जिनके 80 या 85% से कम आते हैं. And he only had 50% in his result. I wanted to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up. उनको जाना था आर्मी में, लेकिन उनकी आंटी ने उनका जो एडमिशन लेटर था वो फाड़ दिया. Then I decided that I wanted to join the police force. So then he thought कि आर्मी तो ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, तो अब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. सो उसकी मम्मा ने मना कर दिया, उनको नहीं भेजना था उनके बच्चे को पुलिस फोर्स में. सो उनकी मम्मा ने बोला कि नहीं, आप नहीं जाओगे ये पुलिस फोर्स की पढ़ाई करने के लिए. यू जस्ट कंप्लीट योर नॉर्मल ग्रेजुएशन. दैट मीन्स द कॉलेज कोर्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन डू आफ्टर 12th standard. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. सो ही स्टडीड इन दिस जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. देर आई वॉज टू either टेक फ्रेंच और जर्मन. सो वहाँ पे उनको दो सब्जेक्ट के बीच में चूज़ करना था, इन बिटवीन टू लैंग्वेजेस. ईदर ही हैज़ टू टेक फ्रेंच और जर्मन. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. मतलब कि उन्होंने अपने स्कूल टाइम में फ्रेंच 7 years तक पढ़ी थी. आई डिड नॉट नो इवन 7 words ऑफ फ्रेंच. लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई में ध्यान तो दिया ही नहीं, सो ही डिड नॉट इवन नो 7 words ऑफ फ्रेंच. So he decided to take German. Then my German teacher died. लेकिन गलती से उनके जो जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाले टीचर थे, he died. The college told me that I could change the college or take French. Now he was having just this one option, that either if he wants to continue with the German language, then he has to change his college, or else if he want to continue with this same college, then he has to take French language other than German. Now who would give me admission in another college? So he thought कि अगर वो फ्रेंच लेंगे, अगर वो जर्मन लेंगे तो उनको दूसरी कॉलेज में जाना पड़ेगा, और इतने परसेंटेज के साथ में उनको कोई भी दूसरी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला नहीं था. एंड इन दिस कॉलेज ऑल्सो आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. इस कॉलेज में भी उनको एडमिशन जो था वो किसी के इन्फ्लुएंस से, मीन्स किसी के रिकमेंडेशन से मिला था, पहचान लगा के. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. सो ही थॉट कि कॉलेज चेंज करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, सो इंस्टेड आई विल चेंज द लैंग्वेज टू बी रेड, एंड दैट देन ही चोज फ्रेंच, एंड ही स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज अगेन. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन. तो उन्होंने ये लैंग्वेज जो है अपनी कज़िन से सीखना स्टार्ट किया. नाउ हिज कज़िन वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. उनकी जो कज़िन थी उनके हस्बैंड एक आर्किटेक्ट थे. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. सो ही वॉज रियली एक्साइटेड कि वो एक आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाके उनकी वाइफ से फ्रेंच सीख रहे थे. Then Miss Velaraja asked him, was it then that you decided you wanted to do architecture? So उन्होंने पूछा कि जब आप वो आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाने लगे फ्रेंच सीखने के लिए, क्या तब आपने ऐसा सोचा कि आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे? Then he replies, actually it all happened quite by chance. तो he says कि ये सब जो है वो एकदम by chance हो गया, by luck हो गया. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. सो जब वो वहाँ पे फ्रेंच सीखने जाते थे, ही सॉ कि वहाँ पे कोई एक विंडो का डिटेल ड्राइंग बना रहा है.
A window detail is a very advanced drawing. Now architectures, they have to plan the complete building, or you can say space, into different sections, whether it is one particular room or a window or a balcony. They have to plan it very much accordingly, seeing the measurements and everything. So it takes so much of details in it. I told him that his drawing was wrong. सो जो ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उस पर्सन को बोला कि आपका ड्राइंग, जिसने भी वो विंडो का ड्राइंग ड्रॉ कर रहे थे, उसको बोला कि आपका ड्राइंग रॉन्ग है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि उसने जो विंडो बनाया है, डिटेलिंग किया है, अगर वो ये एक्चुअली में बनाएगा विंडो तो वो ओपन ही नहीं होगा, उसने गलत बनाया है. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. So हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ में बैट लगाया कि देखना ऐसा ही होगा, आपका विंडो ओपन नहीं होगा, आपने गलत बनाया है. और सच में ऐसा ही हुआ. जब एक्चुअली इन रियलिटी वो विंडो बनाया गया तो सेम प्रॉब्लम हैपेंड, द विंडो वॉज नॉट ओपनिंग. माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड. और ये जान के, जो उनके कज़िन के हस्बैंड थे, हु वॉज ऑलरेडी एन आर्किटेक्ट, वो ये जान के एकदम सरप्राइज्ड हो गए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड. तो तब ही उनके जो कज़िन के हस्बैंड है, उन्होंने मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप कुछ चीज़ें ड्रॉ करके मुझे बताइए. एंड ही डिड दैट इमीडिएटली. इट जस्ट केम नेचुरली टू हिम. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस. उन्होंने उसको बोला कि एक हाउस डिज़ाइन करके दो, पूरा अच्छे से प्लान करो. He did that with complete detailing. After that, he told me to drop everything and join architecture. So basically, उनके जो cousin के husband थे, उन्होंने उसकी एक key quality पहचान ली, that he was very good in details and in drawing and planning such kind of things that an architect can do. So his cousin's husband told him that you drop everything, सब कुछ छोड़ दो और सीधा architecture में आ जाओ. After that, we went to meet the principal of the college. So फिर उन्होंने सोच लिया कि अब वो आर्किटेक्चर ज्वाइन करेंगे. सो वो आर्किटेक्चर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए. बट द प्रिंसिपल वार्नड हिम एज हिज रिजल्ट्स वर नॉट एट ऑल गुड. सो प्रिंसिपल ने उनको वार्न किया that I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देने दूंगा, लेकिन अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देन यू विल नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज. बट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम ही गॉट एन A+, एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक. केक वॉक मीन्स इट बिकेम अ वेरी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हिज लाइफ. उसके लिए ये सारे काम जो थे वो बहुत ही ईजी हो गए थे, बिकॉज इट ऑल केम नेचुरली टू हिम. आई हैड नेवर मेड अ प्लान. उसने कभी भी पहले लाइफ में प्लान नहीं बनाया था. बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप. लेकिन वो पूरा दिन इतना खेलता था, इतनी चीज़ें ऑब्जर्व करता था, सो उसको एक आइडिया था कि कोई भी चीज़ ऊपर से या अलग अलग व्यूज़ से कैसे दिखती है. आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज. सेक्शन मीन्स हर एक रूम के, हर एक बिल्डिंग के अलग अलग सेक्शन या पार्ट्स होते हैं जिनको आर्किटेक्ट्स को अच्छे से प्लान करना होता है. सो उसको ये सब कभी नहीं पता था. बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक. लेकिन उसे पता था कि अगर किसी चीज़ के प्लान को कट करेंगे या उसकी डिटेलिंग करेंगे तो वो कैसा दिखेगा या उसको कैसे करना है. आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट. सो इन द फर्स्ट प्लेस ओनली, जैसे उन्होंने आर्किटेक्ट का कॉलेज ज्वाइन किया, सो ही वॉज गेटिंग फर्स्ट क्लास. आफ्टर दैट आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. सो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने स्कूल टाइम में जो भी किया, खेला या ऑब्जर्व किया, वॉट एवर ही डिड, ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग केम टू हिम फ्रॉम दोज थिंग्स ओनली. He said, I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunitions. So उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था बेहराम दिवेचा. उनके साथ में वो कॉम्पिटिशन्स लगाते थे ऑफ डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, मीन्स बड़े बड़े पैलेसेस बनाना, गन्स डिज़ाइन करना, एम्यूनिशंस मीन्स उसमें जो बुलेट्स और ये सब यूज़ होती है उसको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करना. एंड ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. और हर एक फ्रेंड जो है अपने अपने अलग अलग डिज़ाइंस बनाता था, सो दैट दे कुड बी डिफरेंट एंड दे कुड विन द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देमसेल्व्स. सो बिकॉज ऑफ ऑल these थिंग्स ही थॉट दैट ही गॉट दिस क्वालिटी इन हिम. In school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good.
when you grow up you become an architect. So उनकी ये जो अच्छी क्वालिटी थी वो शायद वन ऑफ हिज टीचर इन एन अर्ली एज ओनली उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था, पहचान लिया था व्हेन ही वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड. तभी उनके एक टीचर थे मिसेस गुप्ता करके, उन्होंने उनके स्केचेस देखे थे तो तभी बोल दिया था कि बाकी सारी चीज़ों में तो तुम यूजलेस हो, दैट यू हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग दिस थिंग्स बट योर स्केचेस आर एक्सेप्शनली वेल, मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं. सो व्हाट डू यू डू इन फ्यूचर, यू बिकम एन आर्किटेक्ट. आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट. सो नाउ ही वंडर्स कि उस टाइम पे उनके टीचर सही बोल रहे थे कि उन्होंने उनका जो टैलेंट था वो पहचान लिया था. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. सो जब वो आर्किटेक्ट बन गए वो अपने टीचर के पास गए और उन्होंने अपने टीचर को बताया कि वो एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं. देन मिस बेला राजा आस्क्ड हिम, व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम? सो नाउ शी आस्क्ड हिम कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं था? वॉज देयर एनीथिंग कि आप कोप या मैनेज नहीं कर पा रहे थे जैसा करिकुलम था, मीन्स जैसा सिलेबस था या जिस तरह की पढ़ाई थी? वाई यू वर नॉट एबल टू स्टडी? सो ही सेड, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस में बहुत बुरे थे, लाइक यू टेक इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस. देन साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विथ, मतलब थोड़ा बहुत वो समझ लेते थे. मैथ्स वॉज वेरी बैड, मैथ्स उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. सो बेसिक रीज़न वॉज दैट वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे. ही वॉज जस्ट स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी ही वॉज डूइंग. वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. जो भी स्कूल में सिखाते थे 2 दिन के बाद भूल जाते थे. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ. सो उनको ऐसा लगता था कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें दिमाग यूज़ करने जैसा कुछ है ही नहीं, एंड दैट इज़ वाई इट कुड नॉट इंटरेस्ट हिम. देन शी आस्क्ड, डिड यू थिंक what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? So now Miss Bela Raja asked him कि आपको क्या लगता है कि स्कूल की पढ़ाई बोरिंग थी, या फिर आपको ऐसा लगता था कि वंस आपने लेसन का कंसेप्ट समझ लिया है फिर बाकी का चैप्टर समझने में यू लॉस्ट इंटरेस्ट? सो ही सेड, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट. बोर्डिंग स्कूल में रहना डिफ़िकल्ट है. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, मतलब डे टू डे का पूरा शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको जाना पड़ता है. सो इट वॉज लाइक अ मोनोटोनस लाइफ. एवरी डे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू वेक अप एंड कीप ऑन डूइंग सर्टन थिंग्स एज पर द schedule given to you. On the other hand, it is good also because it teaches you to be in discipline and be determined in whatever you are doing, because consistency is really important. Nowadays there are so many tests. आजकल इतने टेस्ट होते हैं. Back then whenever we had test we used to just copy, कि हम लोग कॉपी कर लेते थे जब भी टेस्ट होती थी. The teacher thought that we had done our work, और टीचर्स को लगता था कि भाई हमने हमारा काम कर लिया, इनकी टेस्ट हो गई and the things are over. There is a contention, now she says, there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? कंटेंशन यानी एक हीटेड डिसअग्रीमेंट होता है. सबको ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्सन में कुछ लर्निंग का डिसेबिलिटी है, मतलब कि सपोज़ कि वो अच्छा नहीं है पढ़ाई में बट फिर भी उसमें कोई ना कुछ गिफ्टेड क्वालिटी होती है, एक स्किल होती है जिसकी वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है. सो एवरीबडी थिंक्स कि ये हैंड इन हैंड चलता है, कि अगर किसी पर्सन में किसी चीज़ की कमी है, मतलब कि वो पढ़ाई में वीक है बट फिर ऑन दी अदर हैंड उसके पास एक अच्छी क्वालिटी होती है जिसके दम पे वो अपनी लाइफ बना लेता है. सो मिस बेला राजा ने उनको पूछा कि क्या ये आप पे भी अप्लाई करता है? सो ही रिप्लाइज, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. तो वो बताते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ तो मेरे क्लास में से काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट और सेकेंड आते थे, लेकिन आज के टाइम में वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बहुत ही कॉमन से जॉब्स कर रहे हैं. वेरेस कि जो पढ़ते नहीं थे, लाइक स्टूडेंट्स लाइक हिम, they have become really successful or done something that they were really passionate and skillful about. I have come across, so then she also adds in this, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. So Miss Bela Raja adds and tells him that कि हाँ उन्होंने भी सुना है काफ़ी सारे सिचुएशन में लोगों से कि जो उनकी क्लास के टॉपर्स थे आज वो एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, वेरेज जो एवरेज या बिलो एवरेज थे उन्होंने कोई ना कोई अपना काम या स्टार्टअप स्टार्ट करके दे आर इन अ रियली गुड पोजिशन टुडे नाउ. देन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेज, इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट,
कि उन्होंने जिस तरह से स्कूल में अपना लाइफ जिया उसकी वजह से ही वो इतने स्मार्ट बन गए. आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन देन वॉट अकेडेमिक्स वुड हैव टॉट मी. सो ही सेड कि उन्होंने अपने से जो भी किया उसकी वजह से वो ज़्यादा सीखे हैं रेदर देन पेइंग अटेंशन ऑन हिज स्टडीज़ और अकेडेमिक्स. दैट इज़ बिकॉज सो देन मिस वेला राजा counters him and tells him that is because the personality and skills were there. ऐसा इसलिए था क्योंकि आप में वो पर्सनालिटी एंड स्किल्स है. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू जनरलाइज इट. yes, it is true that various people have one or the other skills or talent in them, but that does not mean that academics or studies is not important. They are important and it should go hand in hand. Even if you have a personal talent or skill, you should develop it and try to focus on it and practice on it so that you get expert or mastery in that. But still, on the other hand, studies are also equally important. It should be like balanced. सो देन शी सेज कि आप में ऑलरेडी वो पर्सनालिटी और स्किल्स थी, इसलिए यू वर एबल टू डू इट. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू. सो बेला राजा उनको बोलती है कि आप में वो स्किल थी, वो एक्सप्रेशन था कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर पाए जो आपको करनी थी. इवन आफ्टर ब्रेकिंग, हियर डिफाइड मीन्स ब्रेकिंग each and every rule of his school or whatever he needed to do in his school days. He did not do it, he broke it, but still उनको अपने लाइफ मतलब एक ऐसा उनमें स्किल या पर्सनालिटी था जिसकी वजह से टुडे ही हैज़ बिकम सच अ ग्रेट आर्किटेक्ट. He said, I was more interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. So he explained कि पढ़ाई से ज़्यादा ही यूज़ टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट और वो अपने माइंड में दूसरी चीज़ें सोचते रहते थे. फॉर एग्जांपल कि अगर कभी बारिश हो गई तो यूज़ टू थिंक कि ये जो बारिश का बहता पानी है वो कहाँ फ्लो होके जाएगा और मैं उसको रोकने के लिए कैसे एक डैम बना सकता हूँ. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, कि वो डैम में वाटर कैसे फ्लो होगा और कितना पानी वो डैम जो है वो होल्ड कर पाएगा. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. सो ही नीडेड food for his thought. He needed the food for his brain. He needed such kind of thoughts and questions in his mind to look for, to observe for, जिसकी वजह से he used to get interested in all the outside things. When students lost a button while playing or fighting, कभी खेलने में या झगड़े में उनका बटन लूज हो गया तो वो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास में आते थे. एंड वॉट ही यूज़ टू डू, वो चौक में से बड़े ही अच्छे से ब्लेड यूज़ करके उसमें से उसका एक छोटा सा थिन पार्ट कट करके देते थे सो दैट स्टूडेंट कैन यूज़ इट एज अ बटन ऑन हिज और हर शर्ट. क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और कोई भी स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि उनका बटन खो जाए और उसकी वजह से उनको डांट पड़े. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर, मतलब अच्छे से उनका पूरा जो दिन है वो ख़त्म हो जाता था. एंड आफ्टर डिनर इट वॉज ओके विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. सो डिनर तक उनका यूनिफॉर्म कम्प्लीटली नीट होना चाहिए. आफ्टर दैट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बट व्हेन इन द स्कूल प्रीमाइसेस it was really important that they maintain their discipline. Then Bela Raja says, coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? कि अगर हम आज की बात करें तो आप अपने क्लाइंट को किस तरह का स्ट्रक्चर देना चाहते हैं. बीइंग एन आर्किटेक्ट, वो आप कैसे सोचते हो, कैसे डिसाइड करते हो. तो ही सेज, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, कि सबसे पहले मैं मेरे क्लाइंट का फेस देखता हूँ. उनके कपड़े, द वे ही टॉक्स, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसी चीज़ों को बोलते हैं, क्या खाते हैं, उन्हें किस तरह का टेस्ट पसंद है. सो इससे एक पर्सन का क्या माइंडसेट है, उनकी क्या पर्सनालिटी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. सो इसकी वजह से ही वॉज एबल टू रिलेट विद द पीपल इन अ वेरी कम्फर्टेबल वे. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली मीन्स उनको एकदम सडनली और नेचुरली आ जाता है. ऐसा नहीं कि बहुत सोचना पड़ता है. इट कम्स टू हिम वेरी एफर्टलेसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. मतलब वो ऑन द स्पॉट वो चीज़ कर सकते थे. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, मतलब तुरंत ही, नेचुरली, जस्ट लाइक दैट, विदाउट एनी एफर्ट. ऐसा पूछा बेला राजा ने. ही सेड, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अरिथमेटिक, वॉट एवर. मतलब कि आप इसको इंस्टिंक्ट बोलो, मतलब मेरे अंदर की इंट्यूशन या आवाज़ बोलो, या फिर किसी तरह का मैथ्स बोलो. अरिथमेटिक मीन्स मैथ्स, वॉट एवर. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. तो उनके लिए मैथमेटिक्स इज़ लाइक कि वो डिज़ाइन रखना, उसका कंस्ट्रक्शन करना,
and using his own psychology and sociology means the kind of conversation and the relationship he has with his clients. Keeping all these things in his mind, he presents his plan, his designs to his client according to their needs and their necessities, and that all comes to him very naturally. So when he takes all these things together, like taking the suitable design, constructing them in a better way, using his own psychology as well as the social features that or the social relationship that he possesses with his clients, when he puts all these things together, he define it as his mathematics of creating the best building or the best plan or the design for his clients, and making a sketch from all that is mathematics. So उनके लिए mathematics was like his work, the way he used to do his work, the way he used to design various different things for his clients using his own psychology and his social relationship with his client. So here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation to mathematics. So each and every person in his or her life has different definitions for different words because it means to them differently. Taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. So in his childhood times he did not like maths, lekin in present day he has defined maths in such a way that it had become the most lovable subject of his life. So from this lesson we come to know that every individual has one or the other qualities. One needs to have that vision to look for it and find it, that what it is, and work on it. One or the other way you will stumble upon it and you will come to know that you need to do this thing in your life. This is what you are talented or skillful at. You must practice it and move forward with it and become successful in it. I hope you understood the lesson. Thank you for watching. Please like and subscribe.